All right, guys, we're live. Assalamu alaikum, everybody. Welcome to PSL Nama at DN Sport. I'm your host, Waqas. I have with me Sohaib and Hassan. We're going to be reviewing the double header today. And before we get into like the nuts and bolts of what happened, I want to just take a moment and say, Faheem Ashraf, we salute and bow down to your greatness. And I would like Hassan bhai to expand on this क्योंकि आज उनकी टीम जीती है. So Hassan bhai, the floor is yours. Take it away, and whatever you have to say, eh, we'll hear it today. यार क्योंकि आज आपका बनता है. मतलब all I can say is finally Faheem Ashraf, finally about time. मतलब एक मैच था वार्म अप मैच 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का जो ब्रॉडकास्ट भी नहीं हुआ था, तब से हम सुन रहे थे फहीम अशरफ द बैट्समैन. We had seen Faheem Ashraf the bowler, but Right. properly Faheem Ashraf white ball batsman देखने में, I mean red ball में उसने की है अच्छी innings, but power hitting game में ना always left wanting. And अच्छा ये हुआ कि he dug in when it was difficult, and उसने शुरू में शादाब को support किया because Azam got out cheaply, right? और आसिफ भी चला गया, and then he was batting with the tail, so it was a very tricky situation. And मैच हार गए थे वहां पे यूनाइटेड more or less जब आसिफ भी आउट हुआ है और टेल आ गई और इहसानुल्लाह bowling thunderbolts. मतलब वो he is looking class apart now, to be honest. मतलब एक दो बॉलर्स उसके आसपास आ रहे हैं. शाहीन is doing well, but इहसानुल्लाह यार is looking on a league of its own right now. And despite that, Islamabad United played him really well. He was bowling really well. And फिर भी, I mean, I think this is one of the most expensive spells he's done this season, 2 for 35. Testament to him bowling so well, because I think he's been going at under 6. But अच्छी चीज ये हुई कि थोड़ा सा शुरू में कॉलिन मनरो ने दोबारा वही इम्पेटस शुरू किया. रहमानुल्लाह ने भी अच्छी शॉट कैमियो मारा. I was expecting more out of Alex Hales, but that didn't happen. I mean, pretty bad innings on his part. And then, you know, everybody was waiting for the Azam Khan show. वो भी जब out हो गया ना, तो I think props to Shadab. पहले उसने charge लिया, took it. I think we're having some technical difficulties in getting Hassan bhai's broadcast live. So hey, if you want to take it from there. अच्छा, again brilliant innings by Faheem. And then end में भी ना जब आखिरी ओवर था तो लग ही रहा था कि यार एक आधा हिट एंड मिस हो गया अगर तो मैच मुल्तान ले जाएगा. I mean both teams are doing really well, but then end में I think he batted very smartly. एक shot of the tournament में new entry आई है, so I've been keeping count. एक थी सैम अयूब की जो नो लुक शॉट थी, और फिर एक थी जो अब्दुल्ला शफीक ने स्ट्रेट ड्राइव मारी थी. Hassan bhai, can you hear us? Yeah, can you hear me? Yeah, we can hear you. Your video is stuck a bit, so if you can just like reconnect or something. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है वैसे? हाँ बिल्कुल, आवाज बेहतरीन आ रही है. हाँ, कैमरा बंद करके खोलो. It's stuck again. Really? Yeah. I think it just takes a screenshot of your face and then like. अच्छा. So मैं पहले अपनी रैंट कंप्लीट कर लेता हूँ. रैंट कंप्लीट करें फिर आप करें. हाँ करें. सैम अयूब की एक नो लुक शॉट थी जो उसने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड मैच में मारी थी, छक्का जो उसने फ्लिक किया था. That was possibly the shot of the tournament. फिर आजम खान ने जो स्वीप मारा था हसनैन को, जो आई थिंक रूफटॉप पे जाके गिरी थी बॉल. एंड देन अब्दुल्ला शफीक की एक स्ट्रेट चेक ड्राइव थी जो छक्के के लिए गई थी. एंड देन टुडे फहीम अशरफ, अनबिलीवेबल शॉट यार. पैडल कर रहा है, रिवर्स पैडल कर रहा है, he gets beaten and he takes the ball on the full. And छक्के के लिए चली जाती. अच्छा.
यार मेरा रैंट इंटरप्ट हो रहा है। अच्छा, छक्के के लिए ओवर थर्ड मैन, वाज इट फाइन लेग? हाँ, थर्ड मैन थर्ड मैन, थर्ड मैन। क्योंकि थर्ड उन्होंने मैन थे, हाँ। रिवर्स कर रहा था ना। एंड मतलब उसने ना एक किस्म की हॉरिजॉन्टल बैट से पैडल मेट ऑन द, मतलब जो इम्पैक्ट पॉइंट था ना वहां पे, द बैट वाजंट देयर, ही जस्ट गॉट देयर इन द लास्ट सेकंड एंड वेंट फॉर सिक्स, एंड दैट वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट. So I think possibly one of the shots of the tournament, it could be a fluke, whatever it was a thing of beauty. I was waiting for this to happen for a long time from Faheem Ashraf. Him doing this now is good for Pakistan. It's good for Islamabad United, and I'm glad they won. A winning combination इनका थोड़ा solid लग रहा है. Mubashir Khan seems to be a good addition. Mohammad Wasim Jr. also left wanting for a long time. उसने भी आज आके एक छोटा कैमियो मारा जो काफी critical था. 7 ball 16 करना उस phase में was also priceless. So all in all, Islamabad United batting the way Islamabad United does, that is explosive from top to bottom. And बेशक उनको आप आउट करते रहें बीच में, they keep coming at you, and that's the beauty of United. So happy for that win. Right. So we're gonna let Hassan bhai take a breather and reconnect. वो थोड़ा अभी emotions एकदम bubble up हुए हैं उनके, उनकी टीम जीती है। So Hassan bhai, you can reconnect. In the meantime, I'll go to Sohaib. We'll try to like decipher Islamabad की जो win है from a technical cricketing standpoint, right? क्योंकि it's a bit like कि जब ये हमने स्टार्ट किया था शो, राइट, तो पहले दूसरे एपिसोड में ही एक चीज हमने क्या कहते हैं डिस्कस की थी, विच वाज के कौन सी टीम का डेटा सबसे जो है वो मजेदार है, राइट। एंड बाय मजेदार आई मीन कौन सी टीम का डेटा सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है टू अ पॉइंट वेयर, जिसे कहते हैं इट गिव्स देम द मोस्ट हाईएस्ट परसेंटेज या मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक विन परसेंटेज इन द टूर्नामेंट। सो द थिंग वाज के हम सब कह रहे थे कि मुल्तान जो है वो उनका डेटा बड़ा जबरदस्त है, गेट्स देम लाइक विंस 9 out of 10, लेकिन वो उस एक पॉइंट पे फंसते हैं जहां पे उनकी विकेट्स गिर जाती हैं या उनको कोई पैक बैक कर दे अगर चेज या टारगेट के दौरान। एंड आई पॉइंटेड आउट कि इस्लामाबाद का जो मॉडल है डेटा का, दैट इज बेस्ड ऑन द इंग्लैंड मॉडल, कि उनका टॉप फर्स्ट जो आता है ओपनर और आखिरी जो बंदा आता है उसकी मेंटालिटी और माइंडसेट एक ही होता है, वो मारी जाता है मारे जाता है। और आज आपने यही देखा बेसिकली कि इस्लामाबाद बेसिकली लॉस्ट देयर एंटायर मिडिल ऑर्डर, उनका पूरा मिडिल ऑर्डर खत्म हो गया था, राइट। फहीम और उस पे आ गई थी, वसीम जूनियर पे बात आ गई थी और वहां से उन्होंने गेम निकाली है। आई थिंक द लास्ट 40 और 50 रन आखिरी दो जो पार्टनरशिप लगी थी उन्होंने मारा है। तो ये चीज देखने में तो कभी लाइक अभी एक उन्होंने चेज लगाने की कोशिश की थी जिसमें उनका पूरा मिडिल ऑर्डर अजीब तरीके से खेला था और सारे आउट हो गए थे एंड दे लॉस्ट द गेम और लोगों ने मजाक उड़ाया था। बट आई स्टिल फील कि इस्लामाबाद का जो मॉडल है ना, दैट्स मोर लाइक उसकी जो, अगर उसको आप 10 सीजन में यूज करोगे ना तो 7-8 सीजन वो आपको अच्छा आउटकम देगा। सो इफ यू कैन लाइक एक्सपैंड ऑन दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि लाइक हम बाकी टीम्स को देते हैं वो इतना नहीं होता, बट इस्लामाबाद आर द ओजी डेटा टीम। सो या थॉट्स ऑन द गेम। अच्छा यार, इस्लामाबाद और मुल्तान मतलब दो अगेन डेटा सेंट्रिक फ्रेंचाइजीज हैं। दोनों का डेटा यूज करने का तरीका, उस डेटा यूज करके उसकी स्ट्रैटेजी या उनकी टैक्टिक्स जो है बहुत मुख्तलिफ हैं दोनों की। एंड स्ट्रैटेजी किसी एक को आपको पसंद हो सकती है, किसी दूसरे को जरूरी नहीं है कि वो हर दफा काम आए, जरूरी नहीं है कि काम ना भी आए। लाइक इफ यू लुक एट द लास्ट 6 सीजंस, लाइक लास्ट 5 सीजंस, इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बहुत बात करते हैं लेकिन दे हैवंट वन अ ट्रॉफी 4 सीजन से। डिस्पाइट बीइंग वेरी गुड एट इट, दे लुक गुड, दे प्ले वेल। एक सीजन ऐसा भी था जहां उन्होंने प्रॉब्ली एंड में सिर्फ 3 मैचेस ही जीते थे 10 में से, इफ आई एम नॉट wrong. But I'm a huge fan of Islamabad United England strategy. I'm not as much of a fan of Multan, but I understand what they do. मुझे लगता है दे स्टार्ट विद रिजवान एंड शान एंड उनको थोड़ा डीप लेके जाते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना इतना फियर्स है, इतना खतरनाक है कि व्हाट दे डू इज दे गिव देम प्रॉब्ली 8 or 9 ओवर्स के उस मिडिल ऑर्डर के पास सिर्फ एक ही गेयर हो कि वो आए और मारे।
मतलब दे डोंट हैव दिस इन देयर माइंड्स कि यार अगर हम मार दिया 20 ओवर ना खेल पाए तो क्या होगा. ओवर्स इतने कम बचे होते कि उन्होंने मारना ही होता है. एंड दिस ईयर आई थिंक थोड़ी सी उनकी बैटिंग डेप्थ बढ़ी है. जनरली दे वर बैटिंग टिल 6, थोड़ा 7 तक आ जाता था. इशफाक अनवर अली इज बैटिंग एट 7, उसामा मीर is batting at 8. So they Ilyas भी थोड़ा बहुत बैट घुमा दे. So they do have a bit of batting depth. पॉइंट इज कि अगर आप इस मेरा मुल्तान के बारे में मसला ये है, या उनसे मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ये है ओपिनियन का, कि इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ बैटिंग ऑर्डर तो उसके बाद आपकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. कि आप बोल रहे कि यार ये मेरी बैटिंग है और ये मैं इतनी मजबूत कर दूंगा कि मुझे जो है वो बैटिंग डेप्थ की जरूरत ना पड़े. तो फिर आप तब ये करो जब आपकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो. अभी तक मुल्तान बहुत अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है, लेकिन when you look at the bowling resources, they're not as good as someone like Lahore Qalandars. मतलब magnificent नहीं है. It's utility resources used pretty well. सही है. So I think आज वो बॉलिंग थोड़ी एक्सपोज हो गई इस्लामाबाद के सामने. इस्लामाबाद के बारे में द गुड पार्ट इज कि they never out of the game. They It's never such a out of the game. Exactly. such a deep batting lineup. एंड फहीम के बारे में बात करेंगे. आई लव फहीम. हमने उस दिन भी बात की थी. मेरे हिसाब से ही इज द बेस्ट पेस ऑलराउंडर इन पाकिस्तान राइट नाउ. एंड इस सीजन उसकी मेरे हिसाब से आई थिंक ये चौथी परफॉर्मेंस है. एक परफॉर्मेंस जब आजम ने कोयटा को मारा था, दूसरी साइड से फहीम मार रहा था. देन देयर वर 2 गेम्स इन द मिडिल जहां फहीम की कंट्रीब्यूशन एज एन एंकर काफी इंपॉर्टेंट रही थी. पिछले गेम में भी आई थिंक उसने अच्छा खेला था एंड आज ऑब्वियसली उसने फिनिश किया. तो बिट्स एंड पीसेस में उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस आती रही है. बट आई थिंक मेरे हिसाब से देयर इज नो आर्ग्यूमेंट दैट ही इज द बेस्ट पेस ऑलराउंडर पाकिस्तान. यार फहीम का ये जो एक मसला है विच इज काइंड ऑफ लाइक अ वेरी, जैसे कहते हैं नॉट अ मेजर मसला बट लाइक अ रिलेटिवली अनोइंग मसला, कि फहीम बहुत फॉर्म में लगता है. ही लुक समबडी जो कि आपको आके जो है उसकी तरह क्लोजनर की तरह मैच निकाल के देगा, बट मोर ऑफन देन नॉट वो चीज नहीं हो पाती है. एंड फहीम के जो नंबर्स है ना, ही इज अ मच मच बेटर प्लेयर देन दैट. तो मुझे आज तक ये नहीं समझ में आई है कि यार ये क्यों होता है. लाइक फहीम शुड बी एन ऑटोमेटिक पिक. लाइक वसीम जूनियर से बहुत अच्छा वो प्लेयर है, मैं पर्सनली फील करता हूँ. वसीम जूनियर की सीलिंग जो है वो फहीम की सीलिंग से बहुत नीचे है. लेकिन इंटरनेशनल में भी और इवन लाइक इन क्रंच गेम्स फहीम नहीं कर पाता फॉर सम वेird रीजन. कोई कोई होगा मसला, मसाइल होंगे, राइट. तो ये लाइक व्हाई डू कल कल भी मैंने एक बात बोली थी कि पीपल से कि यार ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ज्यादा अच्छा खेलते हैं. कल भी मैंने एक बात बोली थी कि इफ प्रॉब्ली दे आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज बेटर देन सम ऑफ द अदर्स. आपका नेशनल साइड में प्रॉब्ली आपका रिसोर्स उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता. हम हर दफा ये बोलते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड डेटा इस्तेमाल करता है. डेटा इस्तेमाल करके क्या कर रहा है? डेटा इस्तेमाल करके वो यही कर रहा है कि ये जो प्लेयर है ये भाई इस फेज में अच्छा खेलता है या उस फेज में बॉलिंग अच्छी करेगा, यहाँ उसकी बॉलिंग ज्यादा बेहतर रहेगी या बैटिंग. वो चीज हमें नेशनल साइड में फॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रही, जिसके लिए हम रो रहे होते हैं. स्पेसिस में भी हम कितनी ने इस बारे में स्पेसिस करेंगे. बहुत बात की है भाई. हाँ बहुत बात की है इस बारे में. तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड और इवन मुल्तान जो है वो इन चीजों का ख्याल रख रही है. और आपको नजर आता है कि उसके रिजल्ट, आप छोटी सी एग्जाम्पल देखिए ना, खुशदिल शाह की बॉलिंग देख लो. आपको सब छोड़ दो. खुशदिल शाह पीएसएल में मुल्तान के लिए जिस हिसाब की बॉलिंग करता आया है, इट्स अमेजिंग. आप पाकिस्तान टीम में उसको हमने फिर पीएसएल में इतनी अच्छी करने के बाद नेशनल साइड में उसको हमने ओवर भी नहीं दिया. उसने ओवर कभी नहीं नहीं. दिया था. हाँ ओवर ही नहीं दिया ना. मुझे बड़ी हैरत हुई कि समवन हु इज लाइक कमिंग विद अ वेरी गुड सीजन ऑन हिज बैक विद हिज बॉलिंग, पार्ट टाइमर है, अच्छी कर रहा था. एंड रिजवान उसका कैप्टन था जो उस वक्त कीपर खड़ा हुआ था. तो प्रॉब्ली उसकी हेल्प उस तरह का उसका माइंडसेट भी होता है, हेल्प होती. बट हमने यूज नहीं किया. अनवर अली मुल्तान सुल्तान उसको किस तरह यूज कर रहा है, इट्स वेरी अप्रिशिएबल. तो आई थिंक रिसोर्स अच्छा जब तक इस्तेमाल खुशदिल जो नहीं है होगी. वो केपीके के लिए भी ओवर करता है. हाँ लाइक बिल्कुल वहां भी तो. दैट्स आल्सो हाँ वहां भी करता है. तो इट्स नॉट के पीएसएल इज द अनोमली, पाकिस्तान टीम में ना करना इज द अनोमली फॉर खुशदिल. कि वो पीछे से करते हुए आ रहा होता है बॉलिंग और उसको इस तरह लाइक उसका गेम ही इस तरह का है कि वो आपको 2-3 ओवर निकाल के देगा, लेकिन हम उसे यूज इस्तेमाल नहीं करते. अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी हम पीएसएल जो है देख रहे हैं और लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट वी कैन सी जो फॉर्म में है वो अच्छा खेल रहा है, राइट.
और हमारा जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि दे इवेंचुअली गो एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान टीम, दैट्स बेसिकली द पाथवे जो हम वो कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल में आते हैं, क्योंकि पीएसएल इज बेसिकली स्टेपिंग स्टोन फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम, हाईएस्ट लेवल वो है, और फिर यहाँ पे आप जो है फ्रेंचाइज खेलते हो। तो ये एक प्रॉब्लम जो है, डू यू सी इट हैपनिंग वंस अगेन, कि हम रिसोर्स तो हमने पकड़ लिया है, एहसानुल्लाह आ गया है, फलाना आजम खान आ गया है, साइम आ गया, ये आ गया है, और लेकिन उसके बाद जब हम इनको इंटरनेशनल में लेकर आएंगे तो विल गो इनटू दैट मोड जहां पे हम कंजर्वेटिवली इनको यूज करें और वही मसले रहें जो पहले रहे थे। डू यू सी दैट हैपनिंग अगेन? यस आई डू, यस आई डू। अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसा थिंक टैंक चाहिए और ऐसा कैप्टन भी चाहिए। सही है, हम जब भी ये बात करते हैं, हम बहुत इस बारे में बात आप भी मैं भी बहुत डर के करते हैं जब हम कैप्टनसी की बात करते हैं, क्योंकि हमने इस बारे में बहुत बातें सुन ली हैं। सही है, हमें इस चीज को भी रियलाइज करना चाहिए कि कोई प्लेयर है, उसका गेम एक तो अक्रॉस फॉर्मेट्स जो है वो डिफरेंट तरीके से जज होना चाहिए, फिर देन उसका गेम है, उसकी कैप्टनसी एक अलग तरीके से जज होना चाहिए। सही, आई एम नॉट a huge fan of Babar Azam's captaincy and let it known a lot of times. मेरे हिसाब से एक ऐसा कैप्टन जो रिसोर्स मैनेजमेंट बेहतर कर सकता है, टैक्टिकली ज्यादा स्ट्रांग है, वो अगर आपको लीड कर रहा होगा तो ये सारे चीजें जो है वो बेहतर हैंडल होंगी। ये कोई प्लेयर अगर अंदर आया भी है तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वो यूज हो सकता है अगर उसका कैप्टन ये चीज समझने की सलाहियत रखता है। तो आई थिंक ये भी थोड़ा सा इशू है, और उसके लिए आपको अगेन बैकरूम स्टाफ, थिंक टैंक, आपके कोचेस वगैरह भी ऐसे चाहिए। फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपके फॉरेन कोचेस होते हैं, एंडी फ्लैग जैसा कोच आपको पहले पाकिस्तान थिंक टैंक में तो नहीं मिलेगा, तो ये मसले मसाइल भी होते हैं। तो अगेन अच्छा, यू कैन जस्ट होप। एक और चीज भी है, एंडी फ्लार के कोच की आपने नाम लिया अभी, एंडी फ्लार, मैं हैदर को सुन रहा था सम पॉडकास्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? हाँ, सम पॉडकास्ट, वो शहजाद गयास नहीं, उसके पॉडकास्ट में शायद सुन रहा बस था, उसके पॉडकास्ट में सुन रहा था, एंड हैदर सेड कि अगर पाकिस्तान, अव्वल तो एंडी इज अ वेरी एक्सपेंसिव कोच, राइट? अगर पाकिस्तान उसकी वो मॉनेटरी और रेवेन्यूरेशन पैकेज मैच भी कर देना किसी तरह, तो एंडी वुड नॉट बी इंक्लाइंड टू एक्चुअली वर्क विद लाइक अ नेशनल साइड या नेशनल सेटअप। इसका रीजन ये है कि उसके जो साइड गिग्स है ना, वो इतने फ्लेक्सिबल हैं और उसको इतनी फ्रीडम देते हैं कि आई डोंट थिंक ही वुड बी वेरी, जिसे कहते हैं, इंटरेस्टेड इन कोचिंग अ नेशनल सेटअप लाइक पाकिस्तान, जिसमें जो है थोड़े से वो वाले इश्यूज भी होते हैं कि हर वक्त आपको एक माइक्रोस्कोप लेके देखना पड़ता है। तो हम ऐसा सेटअप ला भी नहीं सकते। लाए थे हम मिकी के टाइम पे, बड़ा डेटा सेंट्रिक कोच था, उसको मॉडर्न जो है कोचिंग के आइडिया थे, लेकिन उसके पीछे लोग इतना पड़ जाते थे उसको, मतलब जो है एक मैनेजमेंट आई थी वसीम खान की, वो लोग कुछ करना चाह रहे थे, उसको भी मतलब सैलरीज वैलरीज के चक्कर में हमने इतना जो है वो रगड़ा था कि कुछ बना नहीं उस चीज का। तो आई डोंट थिंक जो है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इस तरह के लोग काम कर सकते हैं। हम ये होप कर सकते हैं कि ऐसे हमारे जो अपने बंदे हैं वो लीग्स में इन लोगों के अंडर काम करें, उनसे जो है सीखेंगे किस तरह होती हैं चीजें, एंड देन दे काइंड ऑफ लाइक ब्रिंग दैट इनटू द नेशनल सेटअप। तो वो थोड़ा एक्सेप्टेबल भी होगा, थोड़ा ठंडा भी रहेंगे हमारा जो जो लोग हैं जो कवर करते हैं स्पोर्ट को। तो आई थिंक दिस इज हाउ इट कैन वर्क प्रोबेबली। मैं नहीं समझता। मेरे हिसाब से जो जिनकी आप बात कर रहे हो ना कवर करने की, मेरे हिसाब से उनको सीरियसली लेना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी खुश नहीं होंगे। सही है, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर बना था, मोहम्मद वसीम उस सीट पे जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आया था नॉर्दर्न में, एंड एवरीथिंग अबाउट हिम। सही है, वो मॉडर्न क्रिकेट को बैक कर रहा था, वो नए प्लेयर्स को बैक कर रहा था, डेटा सेंट्रिक साइट नजर आ रही थी आपको, सब चीज नजर आ रही थी। एंड उसके बारे में बात ये थी कि ये क्या हल्के प्लेयर को ले आया, जब आपके पास बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं, वसीम अकरम, मकाई यूनिस जैसे बड़े बड़े नाम हैं, तो मोहम्मद वसीम उनके सामने कुछ भी नहीं। सही है, उसके बाद वो फिर तो आगे वो हार गया था, आमिर जैसे भी उसका मजाक उड़ाने लगे, तो एक अलग बात है। तो यही चीज अगर कल को आप बोलोगे यार अब्दुल नवान साहब जो आज मुल्तान के असिस्टेंट कोच हैं और एक बहुत मशहूर डोमेस्टिक सर्किट में एक बहुत मशहूर कोच है मॉडर्न He is T20 the best. He is इज the द best बेस्ट। coach right now in Pakistan, हैंड्स undoubtedly. डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन।
तो अगर आपको कल को ये होता है कि यार अब्दुल रहमान साहब को कोच बना, तो ये गुलाम अली को किसी जो है वो कैपेसिटी में पाकिस्तान टीम के साथ लगा लिया जाता है, जिसने अभी सिंध की टीम के साथ थोड़ा काम किया है, थोड़ा सी उसमें चेंजेस लेके आए, नए लड़के आए, सऊद शकील कैप्टन है, इवेंचुअली वॉन अ टाइटल। तो अगर गुलाम अली किसी कैपेसिटी में है तो यही शो शुरू हो जाएगा और यही लोग नजर आएंगे आपको ये शो करते हुए। कल आप कोई यार फॉरेन कोच ले आओ तो ये यार शो कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ हाजी अकरम को भी लोग काम नहीं करने देंगे, अगर आप रेड इफ यू रियली लुक एट इट। हाजी अकरम को भी नहीं ये काम करने देंगे, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि जो है पीछे वसीम अकरम वकार न है, तो ये क्यों आ रहा है, तो इसमें फिर कुछ The नहीं हो thing, सकता। the thing is कि जब वसीम खान और हसन मानी काम कर रहे थे, the best thing about them was they were not listening to media। उसने बाद में माना भी वसीम खान ने कि हम इनको तो हम्म। सुन ही नहीं रहे थे ना, उनको जो भी और भी कुछ अलाउंसेस वगैरह की उसने बात की थी जो दिए जा रहे थे, वो भी रोक दिए थे उन्होंने। तो अच्छा, that was can a you good guys thing। hear me? सॉरी, मेरी आवाज आ रही है अब सही? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 आ बेहतरीन। रही है। अच्छा यार, हम लास्ट ऐसा लग रहा है साथ बैठे हैं। टेक्निकल इश्यूज से पहले we were talking about United. How did we end up in Wasim Bhai and ये coaches वाली बात? What's the point of हम discussion हम right now? आए हम आए थे कि अब बात शुरू हुई कि फहीम अशरफ या और प्लेयर्स जो है वो यही चीज रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाते पाकिस्तान के लिए। तो बात वहां से निकली कि फिर वो रिसोर्स मैनेजमेंट और इस तरह की चीजें जो अच्छा है वो एक चीज फ्रेंचाइज में हो यहाँ जाती हैं। पर जल्दी जल्दी से ना, जो मेजर मेजर चीजें हैं शो की वो कर लेते हैं, फिर हम अपना पाकिस्तान का जो रेटरिक है उसको जारी रखेंगे। तो अच्छा, वेरी क्विकली, वी फॉरगॉट वाज अ डबल हेडेड प्ले, एक मैच और था। नहीं ना, दोपहर को या आई दोपहर, मीन, हाँ, लाहौर लाहौर वर्सेस पेशावर, आज सुबह अच्छा दोपहर को मैच। उसकी तरफ आते हैं। पहले ना प्रेडिक्शंस और टेबल निकाल लेते हैं, तो फिर वो उतर जाएगा सर से, राइट। आई मीन नॉट दैट वे हम सर से उतार रहे हैं, I'm just like saying By that the way, I'm just going to flaunt a little कि both my predictions from today came true. Zalmi winning very and United winning. जल्मी लाहौर विनिंग, लाहौर जल्मी और विनिंग। लाहौर और जलमी का मैच मेरे हिसाब से वैसे हुआ जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, स्कोर कार्ड वगैरह सब कुछ, बस रिजल्ट स्वैप हो गए। यार लाहौर के मैच में ना, लाहौर और जलमी का मैच मैंने बड़ा चलते फिरते देखा है, क्योंकि उस वक्त लाइक मैं काम वगैरह कर रहा था, तो मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा, बट आई डिड लाइक शाहीन वाज लाइक एट 50 जब मैंने टीवी खोला था, तो मुझे थोड़ा ना मतलब अजीब सा लगा, उनकी 4 विकेटें गिरी हुई थी, शाहीन 50 पे था। आई डिडंट गेट इट या we'll talk about that game, थोड़ा टेबल कर लेते हैं पहले। ओके सो आफ्टर टुडेज डबल हेडर, राइट, लाहौर कलंदर्स एट 12 पॉइंट्स, टेबल टॉपर्स हैं वो, और उसके नीचे इस्लामाबाद जस्ट लाइक जंप टू द सेकंड स्पॉट 12 पॉइंट्स। लेकिन इस्लामाबाद का नेट रन रेट -0.36 है, तो दे कैन, if like Multan wins the next two and Islamabad don't, so they can like overtake them. Multan's at 8, 0.47 positive उनका है। Zalmi's at 8, -509 उनका है, -0.509 उनका है। और कराची इज एट 4, देर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, 0.358, और कोयटा इज एट 4 विथ -1344। So the thing is कि we base Quetta is like hanging from a thread, right? They're hanging from a thread. पेशावर एक और जीतता है गेम, टॉप 4 आपकी डिसाइडेड है, राइट। Yeah. पेशावर कोई नहीं जीतता, और क्वेटा जो है दोनों जीत जाता है, तो इट्स गोना कम डाउन टू रन रेट। द थिंग Peshawar's इज next match is essentially a quarter final नेगेटिव 0. Sorry, because they play Quetta. Peshawar plays Quetta next, so it's essentially going to be a quarter final. नॉट अ क्वार्टर फाइनल इन द not सेंस for के मतलब कोयटा बाहर हो जाएगी फिर अगर पहले हार गई तो। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो कोयटा के लिए वो जो है बेसिकली एन एलिमिनेटर है कोयटा के लिए, तो कोयटा हैज टू विन दिस, व्हिच मींस कि दे डोंट हैव अ, आई डोंट नो सरफराज का उंगली का कोई अपडेट है किसी के पास कि भाई I think he's fine. He's fine. ही इज He's फाइन, gonna तो play. प्रॉब्ली इज गोना प्ले, राइट। सो कोयटा, सरफराज हैज टू विन दैट गेम टू बी इन द रेस, और उसके बाद फिर कोयटा का अगला मैच शायद मुल्तान के साथ है, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो कोयटा का के बारे में वो है ना कि दे लाइक अ कॉकरोच जस्ट नेवर डाइज। वो आई सेड दिस अबाउट पाकिस्तान ना 2022 वर्ल्ड कप में ना, कोयटा मतलब कोयटा मैं पता आपको चलो एक आ बात रहे कहूँ, लेकिन फाइनल खेल गए।
मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा जिसको समझ में आए वो समझ में आई. कोयटा इज लाइक अभी सोहेब भाई ने कहा कोयटा इज लाइक अ कॉकरोच. कोयटा इज नॉट लाइक अ कॉकरोच. कोयटा इज लाइक केएल राहुल राइट नाउ. ऐसा भी मतलब गुड, गहरी बात है. गहरी बात है तो जिसकी समझ में आई वो आ गई राइट. Okay, so that's the table right now. I think कल कल है कोयटा का predictions कर लेते हैं फिर उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे पीजेड वाले मैच की. So if I can pull up the schedule, कल जो है कोयटा और जर्मी का है 7 बजे. Yeah, लेकिन वेरी so वेरी weird schedule. मतलब कोयटा यार जस्ट प्लेड यार देयर 2 मैचेस. हाँ. पीजी आज भी खेला है, कल भी खेलेगा, कोयटा फिर अगेन somebody खेल रहा है. अजीब सी स्ट्रेटेजी. somebody was defending the schedule. I don't know who that person is, but उसको लोगों ने टैग बैक किया हुआ था कि भाई ये क्या स्केड्यूल बनाया राइट. आई एंड थिंक ही वो उस्मान कुछ समथिंग somebody समथिंग इज. yeah. हाँ. And his defense was यार देखो हमने सारी फ्रेंचाइजी से मशावरत के बाद ये बनाया है. और इसकी जो है मैं वजाहत इस तरह करता हूँ कि दोनों डबल हेडर ऑलमोस्ट फुल सोल्ड आउट है. अब लाइक यार ये ये क्या रीजन है. ये कैसी डिफेंस है कि सोल्ड आउट हो गया तो हाँ बहुत अच्छा स्केड्यूल बनाया है तुमने. आई भाई थिंक मेरे दिमाग में ये माय वाइफ सेड कि ये उसके पास जो है ना पिछले साल का कैलेंडर था, ये 2 2 दिन पीछे चल रहा है. लाइक इफ इट वाज सही है तो दिस डबल हेडर वाज सपोज्ड टू बी ऑन संडे. that सो is ये और possible, you know, that is एंड possible. देयर वाज अ सैटरडे जिस दिन हमारा कोई मैच नहीं था. सो शी सेड मे बी दैट वाज अ थर्सडे. सही, सो 2 दिन पहले चल रहा है. फेयर पॉइंट. फेयर I think we पॉइंट. solved some mystery. We have, यार क्योंकि देखो जो आज दोपहर को मैच था ना 2 यार बजे, उसका उसका वो कंप्यूटर अच्छा जाके देखो मैच था. इंटरनेट एक्सप्लोरर तो नहीं चला रहा कहीं. मे बी, मे बी. ये भी हो सकता है. It's unfortunate कि इतना अच्छा मैच हुआ ज़ल्मी और कलंदर का. It was the middle of a working hour on हाँ. middle of the week Tuesday को. So वही ना यार. it should have had more ratings than it did. It was अच्छा था मैच. यार मैंने मतलब लाइक आप ट्यूसडे वाले दिन अगर दोपहर 2 बजे मैच करा रहे हो तो लाइक ट्यूसडे फॉर वर्किंग पीपल ट्यूसडे इज लाइक अ मोर ऑफ अ हेक्टिक डे देन मंडे. क्योंकि मंडे कुछ नहीं हो रहा होता है बेसिकली एवरीबडी मंडे ब्लूज में होते हैं तो पूरा दिन निकलता है. ट्यूसडे को बेसिकली काम होता है जो कि सच बात है राइट. उसमें आपने मैच रख दिया तो आई मिस्ड इट. आई मिस्ड दैट एंटायर गेम. मैंने स्कोर कार्ड पे फॉलो किया है सिर्फ. Alright, so going on to the very quickly we'll do the predictions कल की कोयटा पिशावर. Sohaib, if you can one word summarize और उसके बाद फिर हम in the sense यार डिस्कस कर लेंगे. दिमाग कहता है जल्मी एंड बट आई ऑब्वियसली वांट कोयटा टू विन. यार I think कोयटा will win. हसान भाई. ज़ल्मी. जर्मी. Alright, so there were our predictions. अच्छा अब आते हैं थोड़ा पिशावर और उसके मैच में. क्या कहते हैं लाहौर के मैच पे आते हैं राइट. साइम अयूब यार. आई मीन अनबिलीवेबल जो है उसने हिटिंग की है आज. और उसकी अप्रोच देख के इतना अच्छा लगता है कि ये जो नए बॉयज हमारे आ रहे हैं नीचे से T20 खेलने के लिए दे डोंट केयर कि आगे कौन है. दे डोंट गिव लाइक आई एम नॉट गोना से दैट वर्ड बट दे डोंट गिव अ क्रैप अबाउट के आगे कोई वर्ल्ड नंबर 1 लेग स्पिनर है या वर्ल्ड जो है नंबर 1 फास्ट बॉलर है. वो मारते हैं बस. और राशिद को जिस तरह उसने ट्रीट किया है ना आज आई वाज लाइक मैं कह रहा था यार इस बच्चे में यार जिगरा है वो ना, भाई. वो ये इनिंग्स जो थी ना, ये इट शुड हैव बीन लाइक, ये लाइव देखने वाली इनिंग्स थी. Rashid Khan was bowling really well. His figures don't suggest it, but he was bowling. मतलब उसने बाबर को फंसाया हुआ था. And Saim Ayub facing Shaheen, Haris Rauf and Rashid Khan. मतलब ये all time अगर current active players में से all time best bowling में बनाए तो Best bowler. these should make it. And बिल्कुल. yeah, I tweeted about this as well. People have been saying it's a little early for Sam to be tested in the international circuit. It does not get more difficult than this in the international वो ना circuit. इससे ज्यादा मुश्किल क्या लाओगे भाई. और मतलब शाहीन विद द न्यू बॉल, मैंने कल एक बात की थी कि अगर शाहीन का ओपनिंग बर्स्ट निकाल दिया ज़ल्मी ने तो they can win it. And even though Shaheen got 4 wickets at the end, at the back end, opening burst उन्होंने निकाल दिया था. And thanks largely to Sam, the way he played.
और उसने ना राशिद खान के साथ जो किया ना, वो एक अच्छी चीज ये कर रहा था कि ही वाज गेटिंग टू द पिच ऑफ द बॉल एंड ही वाज एमिंग टुवर्ड्स डीप मिड विकेट, और डीप मिड विकेट से उसको फायदा ये हो रहा था कि वहां से अगर वो गूगली करता या लेग स्पिन करता तो ही वाज प्लेइंग विद द स्पिन बीइंग अ लेफ्टी, एंड अगर वो गूगली करता ना तो इट वाज मोर और लेस अ लो रिस्क शॉट बिकॉज ही हैड द एंगल ऑफ द बैट इन अ फ्लोइंग इन अ वे कि इट वाज द गूगली वाज कवर्ड एज वेल। तो उसने एक दो शॉट्स उसको बड़ी क्लीन वहां पे मारी, और जैसे मैंने ही बाबर एक आता चीज था तो मैंने एक चीज देखी है कि साइम जो है ना वो लाइक बड़ा ही ऐसा बैट्समैन है कि बहुत कम बैट्समैन होते हैं जो अगर वो लाइन कवर भी ना कर पाता है ना, जैसे अगर वो लाइन को मतलब एक तो होता है कि आप बॉलर को लाइन अप करके मारते हो कि आपने उसकी एंगल बनाया और उसको थ्रू द लाइन हिट किया। साइम का जबरदस्त बात ये है कि अगर वो कवर भी नहीं करता है ना लाइन को, वो इतना उसके रिस्क माशाल्लाह इतने जबरदस्त हैं कि वो इतनी जनरेट करता है पावर उससे कि वो अगर उसका मतलब अगर पोस्चर वेट ट्रांसफर भी अच्छा ना हो ना तो वो आपको फेंक के देगा बाउंड्री के बाहर, एंड दैट इज समथिंग, दैट इज अ यूनिक स्किल कि उसकी एडजस्टमेंट इतनी लेट और इतनी जबरदस्त होती है कि वो अपने आप से अगर पोजीशन में भी नहीं होता है तो मतलब बाउंड्री हिट कर देता है। दैट इज he was समथिंग इनक्रेडिबल। आज उसने एक शॉट मारी, I mean, a lot of sixes were hit in Rawalpindi today, but आज उसने एक शॉट मारी which cleared the ground, it cleared the fence, और वो मतलब रोज बैक गई क्राउड के अंदर, मल्टीपल रोज बैक, मतलब मिड टेयर में जाके वो गई, एंड दैट वाज आई थिंक जो इनिशियली उसने छक्का मारा था हारिस रऊफ को, तो हारिस वो भी रऊफ काइंड ऑफ इट वाज अ सिमिलर शॉट टू the one we were talking about earlier, जहाँ पे वो flick करता है, it was like a kind of a no look shot, that flick that he does. It's not actually a no look, it's actually eyes on the ball, so focused कि वो बॉल को impact के बाद follow नहीं करता। फॉलो नहीं करता है वो, एंड दैट इज एक्चुअली द वे दैट इफ यू डू पावर हिटिंग ट्रेनिंग राइट, कोचेज आपको Yeah, बताते हैं कि योर आई शुड बी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे yeah, बॉल बैट से कांटेक्ट कर रही है ना वहां पे आपकी आंख होनी चाहिए। और जब आपका कांटेक्ट एक दफा हो गया ना देन इट डजंट मैटर इफ यू लुक एट इट एंड फॉलो थ्रू विथ योर आईज, आपका हाथ सिर्फ Fletcher घूमना करता था, चाहिए। Fletcher काफी सॉरी, करता था ये, and फ्लेचर अंडर Fletcher करता फ्लेचर। था, करता है। आंड्रे फ्लेचर करता था, इवन मिलर भी ये करता है। मिलर जब कनेक्ट करता है ना अच्छा, तो वो जमीन पे हम्म। देख रहा होता है जहां पे उसने कनेक्ट किया होता है। अच्छा, एक और चीज जो है सोहेब, आई वांट यू टू एक्सपैंड ऑन, शाहीन आज नंबर 5 आया, नंबर 6 आया, आई थिंक सिक्स 5 है, आया, 6 सिक्स आया, सिक्स। सॉरी सॉरी, 6 पे आया। तो लाइक व्हाट इज द डील देयर, इज ही लुकिंग टू बिकम लाइक सिकंदर रजा एन से ऊपर आया ऑलराउंड? है। सिकंदर रजा से ऊपर आया, एग्जैक्टली। तो इज ही लुकिंग फॉर हिमसेल्फ टू एड स्किल्स टू हिज रेpertoire जहां पे वो एक एज अ लाइक लोअर ऑर्डर हिटर भी कंसिडर किया जाए फॉर द लेट्स पाकिस्तान टीम? नॉट फॉरगेट, वो ना जब आया था ना, सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा यहाँ पे, जब वो आया था अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ था 5.4 ओवर्स में, एंड इनिशियली ही वाज 1 of 9। ये अलग बात है कि he finished for at 52 of 36, but from when he came in to when he got out, the rate did climb a lot. तो यो, वो ये स्कोर कार्ड देख के तो लगेगा कि अच्छा खेला है, इनिशियली उसने प्रेशर डाला हुसैन तलत पे। हुसैन पे तलब से। अच्छा अच्छा, ये बात भी है कि शाहीन ऊपर आया, उस वक्त भी मुझे खास जो है वो मूव समझ नहीं आया, लेकिन ये दूसरी दफा हुआ है। कोयटा वाले मैच में भी शाहीन ऊपर आया था, 16 बॉलों पे 16 बनाए थे। एक चीज जो मैं उसमें जज करना चाह रहा हूँ कि अगर वो ऊपर आ रहा है तो वो लो वाली विकेट के लिए आ रहा है अगर, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है? लाइक शादाब को जब हम ऊपर भेजते हैं तो हम उसको स्पिन को हिट करने के लिए भेजते हैं ना। जो शाहीन अगर आ रहा है तो क्या स्पिन को मारता है या पेस को मारता है? ये तब पता चलेगा जब आप थोड़ा सा, आपके पास सैंपल साइज होगा, वो कुछ हिट करेगा, क्योंकि अभी तो वो इतना नीचे बैटिंग करता है। मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग था। मैं अच्छा है बुरा बाद में बोलूंगा। इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मैं इसको बहुत क्लोजली वॉच करने की कोशिश कर रहा था। शाहीन की प्रमोशन है उसामा मीर की, क्योंकि अब कुछ मैं दो तीन दफा ये बात कर चुका हूँ कि अगर आपके नीचे की बॉलर जो है, आपके मेन बॉलर शाहीन, हारिस और नसीम, इनमें से अगर आपको कहीं से बैटिंग मिल जाती है ना मुनासिब किस्म की, तो आपके पास गुंजाइश निकल आएगी कि आप एक स्पिनर या एक फास्ट बॉलर ऐड कर लो। तो इनमें से अगर कोई इतनी बैटिंग कर ले कि हम उसको 8वें नंबर पे बैट करा सके, तो इसलिए मैं शाहीन की बैटिंग को क्लोजली देख रहा था कि वो कितनी बेहतर बैटिंग कर सकता है। जैसे हसान भाई ने बोला कि वो पहले 9 बॉलों पे 1 रन पे खड़ा हुआ था। जैसे वैसे तो हेल्स भी आज 1 रन बनाया 7 बॉल पे, लेकिन उस वक्त लाहौर की सिचुएशन इतनी मुख्तलिफ थी
कि उनके आई थिंक 20 रन पे पावर प्ले के एंड पे 4 विकेटें गिरी हुई थी जब शाहीन आया, तो 4 विकेटें आई थिंक 17 पे गिर गई थी या 20 पे गिर गई थी। तो ही वाज ऑलरेडी इन अ वेरी डिफिकल्ट, लाहौर वर इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। दूसरी तरफ हुसैन तलत खड़ा हुआ था जो कि ही वाज आल्सो टेकिंग टाइम, उससे भी नहीं हिट हो रहा था उस टाइम। तो बाद में हुसैन तलत ने और शाहीन ने स्ट्राइक रेट अपना बराबर कर दिया। दिस वाज अगेन एन एग्जांपल कि आप स्टार्ट मतलब एंड में अगर आप स्ट्राइक रेट देखो तो आपको पूरी इनिंग का पता नहीं चलता वो कैसी गई। बट शाहीन के इनिशियल स्ट्रगल के बाद उसकी जो कम बैक था वो बहुत अच्छा था, 5 छक्के मारे उसने। लेकिन उसकी बैटिंग में वीकनेस है, लाइक इट्स जस्ट मिड विकेट स्लॉग ना उसके ऑन, उसके जोन में दिए, बार बार जोन में दिए बॉलर उसने मारा है। उसके थोड़े जोन से जब भी हटे तो उससे खेला नहीं गया। राइट। बट अच्छा एक इंटरेस्टिंग, अच्छा पॉइंट है। मतलब अगर बैटिंग कर ले ना, अगर उसकी आर्मी में बैटिंग ऐड हो जाती है, हमें बहुत फायदा है, पाकिस्तान टीम को बहुत फायदा है। राइट। अच्छा आयु और वैसे एक जो थोड़ी उसका सी मैच। एनालॉजी, जी या जी गो हसान अहेड। भाई बोलो। नो नो यू कंप्लीट योर थॉट। एक छोटी सी एनालॉजी मैं यूज करना चाहूंगा ऑन अ लाइटर नोट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना जो सेल्स टारगेट्स होते हैं ना, उसका एक ट्रेंड होता है हॉकी स्टिक ट्रेंड जिसको कहते हैं, कि जिसमें यू स्टार्ट स्लो एंड एट द एंड ऑफ द मंथ देयर इज अ हॉकी स्टिक, मतलब स्पाइक होता है और टारगेट पूरा हो जाता है। सिमिलरली बैटिंग में भी ना यही नजर आ रहा है कि दो टाइप ऑफ इनिंग्स होती हैं, या तो आप लीनियर ही रहते हैं थ्रू आउट, समवन लाइक जो बाबर सैम एंड करता है। मोहम्मद आमिर, वर्सेस समवन बाबर लाइक भी। अ हॉकी स्टिक, हाँ, जो एंड में जाके मारते हैं। और जब आप स्कोर कार्ड देखते हैं तो इट लुक्स लाइक, मतलब देयर कुड बी अ गाय बैटिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 180 थ्रू आउट, एंड देन देयर कुड बी अ गाय जो एंड में इतना मारता है कि वो उसका स्ट्राइक रेट 180 पे चला जाता है। 180 हो इन दोनों जाता है। की एक लीनियर है और एक हॉकी स्टिक पे है। सो वही बात हमने पहले भी की थी कि उसके इम्पैक्ट दोनों के बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ट्रू। अच्छा एक चीज है यहाँ पे। आयु और जो है उसका क्या किसका मैच था आज? आयु और मुल्तान का मैच था, राइट? और लाइक हमने डिसाइफर कर लिया था कि आयु और आई जस्ट वांट योर ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि मैंने एक एक्सरसाइज की थी आज छोटी सी घर में बैठ के। और उसके बाद मैंने बड़ी एक फनी सी सिचुएशन में मैं फंस गया था। तो आई वांट योर गाइस ओपिनियन ऑन इट कि आयु और इस्लाम मुल्तान के मैच में हमने देखा कि आयु की एक कोर है, मुल्तान की एक कोर है। उन दोनों कोरों ने मैच खेला, दोनों ने अपने तरीके से खेला, और जो है इस्लामाबाद मैच जीत गई। इसी तरह अब लाहौर की भी एक कोर बन गई है, पेशावर की भी एक कोर बन गई है, राइट? तो व्हाट आई डिड वाज आई बेसिकली सेड आई वेंट टू PSL 9, राइट? मैं फास्ट फॉरवर्ड करके PSL 9 में चला गया, और मैंने बेस्ड ऑन अभी तक मैंने जो भी देखा है PSL, राइट, मैंने एक डिटरमिन किया कि लॉजिकल रिटेंशन क्या होंगी उसकी। और मैंने हर टीम की जो नॉन रिटेन प्लेयर है उनको एक पूल में डालता गया। और पूल में डालने के बाद आई हैड लाइक 50 नेम्स, 50 नेम्स जो रिटेन नहीं हुए हैं PSL 8 से, जो कि PSL 9 के ड्राफ्ट में प्रोबेबली जाएंगे। अब इसमें यह भी है कि PSL 8 में जो टीमें हैं, PSL 8 से लेकर PSL 9 तक जो डोमेस्टिक्स के सीजन होंगे उनमें लोग क्या फॉर्म होती है, दैट्स ऑल्सो फैक्टर। बट देर आर अबाउट 50-55 नेम्स जहां पे 60 नेम ले लेते हैं जहां पे PSL 8 से जो रिटेन नहीं हुआ है। And I was looking at those names and I just kind of like had this weird जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम जितने लोगों जो भी नॉन रिटेन प्लेयर होता है अगर हम उनसे एक 11 बनाए, क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट्स से कराची गोज एंड सेज कि भाई हम सबको बाहर कर रहे हैं, we're gonna keep a clean slate and we're gonna make another core from for PSL 9, वो PSL 9 में बिल्कुल बुरा कोर बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास प्लेयर ही नहीं होगा कोर के लिए। क्योंकि मैंने अभी जो नाम मैं देख रहा हूं उसमें से आप कोर नहीं बना सकते बेसिकली। सो दे एनी टीम दैट बेसिकली गोज इनटू दैट राउट जहां पे उनको वापस अपना कोर डेवलप करना होगा, तो दे आर इन लाइक अ होल लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि उनको फिर जानबूझ के कुछ सीजन शुरू के हारने पड़ेंगे जस्ट टू गेट टू दैट पॉइंट जहां पे वो वापस अपना कोर रिबिल्ड कर सकें। तो ये हाउ डू यू गाइस सी दिस प्रॉब्लम इवॉल्विंग for like It's what teams Lahore like did. huh? Lahore ने ये किया है, जो what you're saying, that's exactly what Lahore did. Exactly, They yeah. lost a season to develop their core. शुरू में उनका जो कैप्टन था वो they were sticking with him a couple of seasons, मतलब इंडिविजुअली भी वो ठीक कर था, and then they went to, on a refresh, और फिर थोड़ा सा they had to struggle initially and then they won.
तो आई थिंक नेचुरल कोर्स यही लगता है. एनी क्रिकेटिंग स्टोरी दैट यू हेयर जहाँ पे टर्न अराउंड किया टीम्स ने, इट्स नेवर इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस, which means कि there will never be a point PSL के अंदर जहां 6 की 6 टीम स्ट्रांग होंगी. There will never be a point like that. हर सीजन में या किसी एक सीजन में या 2 सीजन में कोई एक या 2 टीम्स ऐसी होंगी जो they would completely not be able to hold their own. तो ये एक बड़ी दैट्स नेचुरल. आई मीन अगर लॉ ऑफ एवरेजेस भी देखें, मतलब आप कोई भी अच्छी डायनेस्टीज देख लें ऑफ स्पोर्टिंग स्टोरीज, उसमें भी ऐसी होता है. जो शिकागो बुल्स का 90s का रन था, उसकी भी इनिशियल स्टोरी ऐसी थी. देयर वाज नेवर एन इंस्टेंटेनियस टर्न अराउंड इवन दो दे गॉट द टीम दैट दे वांटेड. यो इंस्टेंटेनियस न्यू थी इंग्लैंड उसमें NFL में न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स जो है टॉम ब्रेडी की जो टीम है, दैट्स आल्सो लाइक द सेम थिंग, राइट? Yeah, absolutely. So it'll be interesting if all teams are competitive, but it's quite unlikely. And ये वाला मसला ज़्यादा होता है when the pool of teams increases. Sohaib, your take on this? यार ये बात तो हमने पहले भी करी थी कि कराची के सपोर्टर्स को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा. पर आई थिंक कराची के सपोर्टर, किसी भी फ्रेंचाइज के सपोर्टर, किसी भी टीम के सपोर्टर पेशेंस से सब्र का मुजाहरा कर सकते हैं अगर उनको नजर आ रहा हो कि हाँ कुछ काम हो रहा है, कुछ जो है वो चेंज हो रहा है. आई थिंक लाइक व्हेन दे वेंट फ्रॉम इमाद टू बाबर, अच्छा मूव था, बुरा मूव था, दे मूव्ड ऑन फ्रॉम इमाद ना. सो गोइंग बैक टू हिम मेरे लिए वाज अ स्टेप, टेकिंग अ स्टेप बैक. वहां से आई थिंक उन्होंने रिटेंशन जो की थी उसमें कासिम को रिटेन किया, हैदर उनके पास आ गया था, तो दे शुड हैव लाइक मूव फॉरवर्ड ना. वहां से कासिम को रेंज दे देते, किसी वहां से कुछ नई टीम बना. अब आई थिंक यहाँ से इमाद की परफॉर्मेंस इतनी खुद की लाइक पर्सनल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि यू वुड सी कराची किंग्स रिटेनिंग हिम एज कैप्टन. तो ये मेरे हिसाब से दे कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, किसी यंग कैप्टन को पकड़ ले. और लाहौर की स्टोरी में एक अच्छी बात यह है कि उनका पीडीपी बहुत स्ट्रांग है. ये उनकी टीम उनकी पीडीपी से बनी है. सही है, वहां से उन्होंने अपनी टीम उठाई. कराची के पास वैसा कुछ भी नहीं है. तो कराची आई डोंट थिंक कि प्लेयर डेवलपमेंट में उनके पास जो अपने स्क्वाड में प्लेयर पे हो जाता है शायद वो डेवलप नहीं होता. वो और प्लेयर तो मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट ऐसी कोई हो रही है. एक छोटी सी बात, मैं साइम वाला पॉइंट मिस हो गया था, उस पर बात करना चाहूंगा. साइम की इनिंग्स अगेन ब्रिलियंट. उसने इससे बेहतर अगेन हसन भाई ने जो बोला कि बॉलिंग अटैक क्या ही होगा जिसकी कोई बैट्समैन पिटाई कर सकता है. और उसने शाहीन को, हारिस को, राशिद को, जमान को भी एक आध चक्का चौका मारा. मुझे एक चीज जलमे की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने साइम को ओपनर भेजा टू केटर शाहीन. तो ये उनको पता था कि शाहीन की जो स्ट्रेंथ है वो अंदर लाता है बॉल को, इन स्विंगर है, तो उन्होंने उस फैक्टर को ही खत्म किया, साइम को लेके आ गए. दिस ऑल्सो शोज द पॉइंट के एक प्लेयर की जो स्टैंडर्ड पोजीशन, जो उसकी प्रेफरेबल पोजीशन है ना, अगर उस पर आप उसको खिलाओ ना तो उसका अलग ही एक नजर आता है ना, उसका चमक नजर. क्योंकि साइम की जो जितनी परफॉर्मेंस है ना, वो एक पावर प्ले बैशर है. सिंध के लिए भी शर्जील और साइम का जो कॉम्बिनेशन बना था, शर्जील इज अ स्लो स्टार्टर, पावर प्ले स्लो खेलता है, उसके बाद जाके मारता है. लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट बड़े अच्छे तरीके से साइम ने कर दिया था नेशनल T20 में, क्योंकि साइम शुरू से मारता है. एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मेरे लिए कि देयर इज अ प्लेयर हु naturally is good at something but he is not being able to do that क्योंकि वो ओपन नहीं कर पाया था. मेरे लिए साइम एंड हारिस शुड हैव ओपन फ्रॉम मैच 1 डे 1. लेकिन फिर वही वाली बात हो जाती है. I'm not saying anything to Babal here. I understand that's the strategy. Babal का striker initially was good. वो जब अच्छा मैं बाबर के स्ट्राइक रेट पे आता हूँ. एक बात, बाबर रिजवान दोनों के स्ट्राइक रेट पे मैं टच करूंगा. सही है, रिजवान को तो काफी बेहतर रिजल्ट चल रहा है. बाबर का स्ट्राइक रेट इस वक्त जो PSL में चल रहा है ना, उससे लाइक आई डू हैव अ प्रॉब्लम कि 120 नहीं होता है, 127, 28, 30 तक होना चाहिए. पर दैट्स अ स्ट्रैटेजी. सही है, एंड दैट इज बेयरेबल विद जल्मी क्योंकि दे हैव हारिस, साइम, पाउल, नीशम, हसीबुल्ला, TKC. उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि बाबर एक एंड हो गया और बाकी उसके राउंड मारेंगे. सही, सो आई एम ओके विद इट. एक एंकर है, उसके राउंड खेल रहे, लेकिन बाकी सब मार. ठीक है, सो आई एम ओके विद इट.
मुल्तान में है कि दे आर शान मसूद एंड रिजवान, एंड उसके बाद जो फॉलो करता है ना उस डीप लेके जाने में, उसके बाद वो इतनी खतरनाक हिटिंग है कि वो सब कवर हो जाता है। वैसे प्रॉब्लम ये है कि बाबर जब तभी आउट हुआ है, सॉरी सोहेब, बाबर जब हाँ हाँ आउट हुआ हाँ। है तो जल्मी लॉस्ट लाइक 7 for 40 समथिंग लाइक दैट। यार वो डेथ तो डेथ हिटिंग में, डेथ हिटिंग में ये सब हो सकता है, मतलब दे आखिर के कुछ ओवर्स थे उसमें सब भी मारने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वकास भाई का आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है भाई का। तो खैर भी वहां आई थिंक इतना वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि आखिर की विकेटें थी, सभी मारने पे जा रहे थे, दे वर ट्राइंग टू गेट लाइक 205 के स्कोर को 215 20 आखिर के कुछ 10-15 रन ऐड हो जाए। तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, उसमें कोई मसला नहीं है। पर जब आप पाकिस्तान टीम में आते हो ना, पाकिस्तान टीम में मसला ये है कि इफ बाबर एंड रिजवान लाइक टेक इट डीप, उसके बाद जो आपकी बैटिंग फॉलो कर रही होती है वो भी शुरू में टाइम ली होती है। लाइक फखर आता है, फखर आइडियली पावर प्ले पैशर है, अगेन ही इज बैटिंग एट नंबर 3। कभी आप शान मसूद आ जाता है, इफ्तिखार होता है, तो वो भी शुरू में टाइम लेता है। सो दैट स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ हर्ट्स पाकिस्तान, बिकॉज या जो मिडिल ऑर्डर वहां उन्हें फॉलो कर रहा होता है ना, उसका टेम्पलेट वो नहीं है जो जल्मी के प्लेयर्स या मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स का है। तो वहां Right. एंड एक लास्ट में ऐड करूंगा कि 2021 की जब टीम अनाउंस मोहम्मद वसीम ने की थी, बाबर रिजवान, आई वाज वेरी हैप्पी विद द इनिशियल टीम, बाबर रिजवान ओपनर था, उसके बाद जो हमारे बैटिंग ऑर्डर फॉलो करना था शोएब मकसूद, आसिफ अली, आजम खान और खुशदिल शाह, मतलब इट वाज द परफेक्ट टेम्पलेट ना, कि अगर बाबर रिजवान डीप लेके जाए तो नीचे से आके लोग मारेंगे। पर वो मसले मसाइल हुए, पेपर प्लेयर्स चेंज हो गए, हमें एक अच्छी टीम बनते बनते रह गई। यार बट पता है एक चीज, आई वुड वांट सैम एंड मोहम्मद हारिस टू ओपन, मगर मसला ये है कि बाबर एंड रिजवान, स्पेशली रिजवान, कैन नॉट प्ले इन एनी अदर पोजीशन इन T20s एटलीस्ट अदर देन एन ओपनर। और उसने बहुत रन किए हैं 20 हाँ हाँ 21 वाला जो उसका सीजन था, 2020 2021 वाला, that was Bradman Zeke level for T20s. हाँ ट्रू 2000 ट्रू। रन उसने किए एक साल में, एंड टी इंटरनेशनल T20s में भी ही क्लाइम्ड अप द लैडर। लोगों को 5-5 साल लगे, उसने वो 1-1.5 साल में उतने रन कर लिए। मगर मसला ये है कि यू डू नीड सम गाइज हु कैन play with the new ball at a strike rate of 200 180, जो ये दोनों कर सकते हैं, सैम भी और मोहम्मद हारिस भी। मोहम्मद हारिस में एक चीज मुझे फील हुई है कि he can play in other positions, Sam maybe not, बट हाँ मोहम्मद हारिस नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा था T20 वर्ल्ड कप में, और बड़ी क्रिटिकल क्रूशल स्टेजेस पे उसने डिसेंट गुड बॉलर्स को, रबाडा वगैरह को भी छक्के शौके मारे थे। तो वो अच्छा अच्छा लोअर guys, we need to do the hashtag boys. मतलब फिर आज टैप करना था। अच्छा आज मैंने, let's go to the hashtags यार, वरना तो हम हाँ लगे लेट्स रहेंगे गो, पूरी रात। लगे रहेंगे इस बार पे तो। Let's go to the हाँ. So जस्ट वन थिंग, product. जस्ट वन थिंग आई वांट ऐड कि मुझे गालियां ना बढ़ जाए, सो आई वांट क्लियर, आई एम नॉट अगेंस्ट बाबर रिजवान, ना मैं इनको टीम से बाहर निकालने की बात कर रहा हूं। इनफैक्ट आई थिंक एट दिस मोमेंट दे शुड बी आवर T20 ओपनर्स। आई हैव जस्ट अ स्मॉल थिंग कि थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ जाए, दे हैव द कैपेसिटी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अगेन। So Yeah. we have a little bit of a problem. Jahan Babar Rizwan should open for us, but Sam and Haris are great players, so they should be in the team as well. So it's a good कहीं पे headache फिट to have. करें इनको। Okay, let's go to the hashtags. Sameer writes, ask PSL Nama. क्या शोहेब जट ने आज सब खाया होगा after Zarmian Babar's performance? By the way, I just need to say a disclaimer that commenters and their views are not subject to the views of this show. So अब खा लिया होगा या नहीं खाया होगा इसका तो हमें पता नहीं। तो आप जो है टैग किया हुआ है समीर भाई आपने शोएब जट को, अगर वो आपको अपडेट दे दे तो हमें कल शो में बता दीजिएगा। थैंक यू। कैन वी हैव द नेक्स्ट हैशटैग प्लीज? Okay, Heather Abbasi writes, this is gonna be good. Ask PSL Nama, please rank these Pakistani top order batsmen in terms of T20 batting. Fakhar Zaman, Haris, Rizwan, Babar Azam, Saim, and Abdullah Shafiq. Who should be Pakistan's top three in T20? Tough one, very tough. Top Guys, three. very quickly. Yeah. Top three T20. Yeah, this is
For me, this should be like again. I'm not a fan of यार anchors, मेरा ख्याल है so अगर टॉप 4 मेरे से पूछना है इसमें से, सो Top three. The question is top three. The question is top three. We have to do top three. I'm gonna go with Fakhar Okay, Saim and then Fakhar Saim and Abdullah. I'll go with Saim, Haris, and Abdullah. यार साइम, बाबर एंड देन अब्दुल्ला. All right. So these were our top three. Heather bhai, I hope you've got your answers. Acha, So Haider Abbasi. By the way, Haider Abbasi, is he the same Haider Abbasi? He's the son of Shahid Yes, Khagan Abbasi. Shahid Khagan yes, Abbasi's yes, son. yes, yes. Oh, good Yeah, to he was have him friend of watching the ours. show. Yeah. Ah. So I think yeah. So those were the hashtags. Moving on to comments, guys. Okay, stumps down morale to right. Shadab hinted that Fahim is gonna finish the match by the queuing Ben Stokes, but nobody picked up on that. By Shadab, Fahim is a greater cricketer than Ben Stokes. बेइज्जती हो रही है उसकी No, उसको no, Ben no. Stokes से लोग बोला। नहीं, the comment, you get the comment right. जब शादाब बोल हुआ था तो he said something on the stump mic, like stump mic caught something, ना? Oh, A Stamp word, might got it. a word very close to Ben Stokes. So But good comment. I Good feel comment. कि फहीम की सीलिंग बेन स्टोक्स ज्यादा है और फहीम जो है वो ज्यादा अच्छा है बेन स्टोक्स से but that's like okay next comment अब I don't know if this is I don't know what's going Oh on here shit. but I know what's going This on can't here be true. This can't be true. यार दिस ये इज आवर हम कल बात मल्टीवर्स कर ऑफ रहे थे मैडनेस. हम कल बात कर रहे थे Any किसी ने comments on कमेंट किया था Anwar? और हम कल Hmm. बात कर रहे थे एंड दिस any मैं comment on वही Anwar कह रहा he's playing utilized better than था, MSA दिस इज आवर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस. Acha, about Anwar Ali, I am actually happy, like surprised this way, because Anwar Ali hasn't been that good with the ball. Like death में आके मतलब it's I don't get it. He's death में आके full toss में विकेट ले रहा है मतलब just ununderstandable for me. But I'm happy for it. I'm happy for it, and it's not like Three wickets, it's yeah. 3 for 3 33. wickets, and it's not like Anwar Ali was bad at yeah comparatively not as good as he is in Multan ki sirf Quetta mein. You've seen him with Pakistan as well that he probably वो ceiling या उसकी quality की वो बात जो कि यार होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं नजर like आती थी. मैं एक क्वेटा के बात लिए बोलूं यहाँ पे मैं एक बात बोलूं यहाँ पे even if Multan go on to win the championship Anwar is not getting retained which is unfortunate Probably yeah, but the middle order बहुत strong है. एहसानुल्लाह भी है, उसामा भी retain होगा तो अनवर मैंने अली आज might just मैंने be आज left out. हाँ मैंने आज पूरा रन किया है ये लाइक Hmm. हाइपोथेटिकल के हर टीम अगर जीत भी जाती है तो उनकी रिटेंशन बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है दे डोंट हैव टू लाइक थिंक Not अबाउट me, yeah, रिटेंशन doing really well. नहीं Really पता है happy अच्छा for मजे की बात एक चीज और भी है जो हम रिटेंशन में भूल जाते हैं वो है कैटेगरी. मतलब मुल्तान का जो मिडिल ऑर्डर है ना उसमें से अगर अगर पीसीबी इसमें से 5 प्लेयर प्लेटिनम में रख देता है तो दे वुड हैव टू लीव समवन आउट. मतलब दीज आर क्वालिटी प्लेयर्स लाइक इसमें टीम डेविड है, इसमें डेविड मिलर है, इसमें रूसो है, Good रिजवान point. है. मतलब दीज आर प्लेटिनम कैटेगरी प्लेयर्स. तो वहां कहीं ना कहीं फिर आप कोई ना कोई मेंटोर बना देते हो किसी को इधर उधर वो हो जाता है लेकिन किसी ना किसी को आपको छोड़ना पड़ जाता है. यार वैसे मिलर ये सारे प्लेटिनम में तो नहीं है ना लाइक मिलर तो प्लेटिनम में नहीं है डिपेंड्स ना कि अगले साल तक क्या होता है. मतलब टिम डेविड इतना मारे कि T20 में But ऑस्ट्रेलिया का you're saying it can change, right? And if it changes, हाँ तो फिर आपको फिर मसले retention छोड़नी पड़ेगी. हाँ अच्छा ये सही कौन बात. डिसाइड करता है कि हु डिसाइड्स कि कौन सी कैटेगरी में इज इट द I पीसीबीज think कॉल और इज इट I think फैन it's बेस्ड कॉल PCB की कॉल. I think PCB की कॉल है नहीं पर पीसीबी में कौन समझ. डिसाइड कर रहा है हु इज डिसाइडिंग दिस इन द पीसीबी I have no clue. I just know कि Wahab Riaz was बिकॉज़ complaining about it. कि he is the most like he has the most wickets in the PSL. So he was probably diamond category था और Haider Ali platinum category था. So he was complaining on that show.
वर्ल्ड कप वाले में। So Wahab wanted platinum. Is that's my understanding from this. एंड हाँ एंड वहाब नहीं ये वाला सीजन तो बुरा गया, बट he did have the most wickets of PSL until PSL 7, और he was the captain of Zalmi. So if there was like some news के franchise और PCB मिल बैठ के कैटेगरी बनाते हैं, तो ये बात सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो वहाब गैस को ये चीज पता होती, क्योंकि वो जल्मी के कैप्टन Yo. एट दैट टाइम। Hmm. तो आई थिंक ये पीसीबी के पास है ये, और वो किस तरह करते हैं आई हैव नो क्लू। बट पीसीबी में मुझे सिर्फ ये पता करना है पीसीबी में बना कौन रहा है, बिकॉज अगर कोई बना रहा है ना तो उसको जाके पता करो कि वो कौन है, लाइक किस अच्छा, लॉजिक से बन रहा है। ये मुझे मैं आज तक नहीं समझ में आया कि पीसीबी की I think इतनी चीजें जो हैं it's a वो। mix of both. PSL is an organization in itself, right? हाँ तो हाँ ये भी है, PSL के हाँ ये अंदर भी। भी कुछ लोग हैं जो अच्छा, they call the shots and they're in contact with PCB. most of the times I've ended up agreeing with the categories they come up with. Like एक हैदर अली की एक थोड़ी सी एक एक्सेप्शन ले लो इस बार प्लैटिनम की। हैदर इज अ गुड प्लेयर, लाइक वेरी गुड प्लेयर, पर प्लैटिनम मेरे हिसाब से डिजर्व नहीं करता था। या एक आध इधर उधर कोई होगी। सारे मैचेस भी नहीं Most खेले। सरफराज Sarfraz, Saifi was in gold this time. सैफी इन गोल्ड। गोल्ड है सैफी, सैफी इस बार गोल्ड है, प्रॉब्ली डायमंड भी ओह नहीं। माय गॉड, ओह माय हाँ गॉड। हाँ, सैफी ड्रॉप इस कैटेगरी। सैफी प्लैटिनम नहीं है इस बार, पिछले साल था, विच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज वो कोयटा का मेन प्लेयर था, सो दे वेंट टू प्लैटिनम। Yeah. लेकिन इस बार मेरी सैफी बात आई थिंक प्लैटिनम तो नहीं है, दैट आई एम श्योर, आई थिंक ही इज गोल्ड। राइट। अच्छा, गोइंग ऑन टू नेक्स्ट कमेंट। तौकीर अब्बास राइट, सर व्हाट एन इनिंग्स फहीम। एब्सोल्युटली यार, बहुत एब्सोल्युटली। जबरदस्त मारा। एंड वो हसन भाई वाला जो कमेंट था, वो फहीम का जो शॉट था, इलियास वाज बॉलिंग वाइड आउटसाइड ऑफ था, मैंने फहीम ने ये जज कर लिया था, ये मुझे याद करेगा कि पहली बॉल वाइड आई, सो ही वाज रेडी किसने क्या करना है। तो दैट राइट, मेक्स इट इवन मोर मतलब अमेजिंग ना, बहुत बहुत जबरदस्त शॉट था। बहुत जबरदस्त शॉट मारे थे। आदिल निसार राइट्स, शान मसूद faced 42% of the balls of the innings and scored 9 runs per over, while every other batter who faced more than 18 balls scored 10.5 runs per over. Do you agree his innings costed MS the match? Good comment. Mm, good comment, very good comment. I think let's break this down mathematically, right? आदिल भाई ने मैथ थोड़ी ले आए तो हम इसको मैथमेटिकली कर देते हैं। नाइन ही प्लेस 42% ऑफ द डिलीवरीज का मतलब है कि ही प्लेज अबाउट 50 डिलीवरीज, राइट, इफ माय मैथ इज करेक्ट। एंड 9 रन पर ओवर फॉर 50 डिलीवरीज इज अबाउट 50 70 रन कुछ बनाया उसने। अगर वो 10.5 से जाता तो 90 रन बनाते, विच मीन्स के मुल्तान वुड हैव रीच 227 225 या 220, राइट। तो या मोस्ट प्रोबेबली, बट यार आप इस तरह जज, मतलब मैच को 207 अगर कोई टीम बना रही है देन यू से कि यार आपने 225 नहीं किए, तो आई थिंक कि वही वाली बात होती है कि मुल्तान की जो कॉम्बिनेशन है, राइट, उस हिसाब से शान ने अपना रोल डिलीवर किया है। अब ये कहना कि शान ने अपने रोल से ज्यादा क्यों नहीं डिलीवर किया, तो ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि मुल्तान नोज कि उनकी बॉलिंग ऐसी है कि अगर उनको 205 210 मिल जाए तो वो डिफेंड कर लेंगे। आई मीन विद द बॉलिंग लाइनअप ऑफ एहसान उल्लाह और सामा मीर, 207 इज रुकता है। इट्स नॉट दैट कि अगर उनको 220 चाहिए, शान की वो 10-20 रन की इनिंग जो है, हाँ ठीक है, कम हुए, होने नहीं चाहिए थे, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स अ फैक्टर दैट यू कैन चॉक इट अप टू के इस वजह से हार है। गाइस थॉट्स? आई थिंक एक पॉइंट मैंने शुरू में भी ऐड किया था कि मुल्तान की स्ट्रेटेजी है कि डीप थोड़ा सा लेके जाए, उसके बाद उनका मिडिल ऑर्डर है, उसको इतनी ही बॉल्स मिले कि उसके पास एक ही गियर हो, और उसको ये सोचने की जरूरत नहीं हो कि यार मैंने पूरे ओवर खेलने हैं, मैंने 20 ओवर खेलने हैं, वो बस एक गियर में जाए। तो अगर शान प्रॉब्ली वो उनको इतना डीप लेके जाके उसका एंड में स्ट्राइक मुनासिब था, अच्छा था, तो प्रॉब्ली टिम डेविड उस तरीके से नहीं खेल रहे। टिम डेविड मैग्निफिसेंट, मैं तो उसका नया नाम है जिल डेविड, बेहतरीन प्लेयर, बहुत जबरदस्त बैटिंग यार, मतलब अमेजिंग बैटिंग। पर ये मतलब अगेन आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ एंकर्स इन माय टीम, सो if I'm making a team, Fan Masood would probably never make my T20 team. Right. Hassan, you want to add or go to the next comment?
Let's move to the next comments. Kafi comments, and we need to wrap up early today. All right. Adil Nisar, same guy writes, love the show. I was on awe when Sohaib Bhai and Usman Bhai discussed white ball history of PCT in this decade and impact of PSL 2 days back. Please do a 2 hour show of red ball was of PCT. Thank you. जरूर Sir, PSL the इंशाल्लाह. thing is, We would sir, love the to. thing is, We would love. we'd love to talk about PCT, लेकिन the thing is कि ये शो का नाम PSL नामा है तो like नाराजगी हो जाएगी थोड़ी अगर अच्छा हम एक ऑफ टॉपिक चले जाए. like you can We'll have like a special episode after PSL. look, you can follow We us can on do, Twitter ना. yeah, हम अभी अभी yeah. अगला कोई टेस्ट मैच हम कोई मैसअप करेंगे ना, उसमें वकास भाई स्पेस करेंगे, हम सारे वहां होंगे और हमारी बैंड चल रही होगी. यार यार इतने दुख है ना पिछले 20-25 सालों के कि 2 घंटे का शो आई डोंट थिंक कवर कर सकेगा. लाइक इतने दुख है आदिल भाई. इफ यू सही फॉलो बात. अस ऑन आवर सोशल्स यू विल नो. Maddie Cha writes, hello sir. Hello. Okay, Shazli, great analysis sir. माशाल्लाह साइम अयूब great batsman. सईद अनवर याद आ गया. Wow. Yeah. Sure. सईद भाई का बस वो ग्रिप वाला सीन अगर मैं माइनस कर दूं तो सईद भाई है ब्यूटीफुल. है. Okay, Tariq Hussain writes, a question for you all. Hypothetically speaking, if you could build a team, what would be your dream 11? Oh, अब this is a पाकिस्तान show in 11, itself. Bhai. This is a show in पाकिस्तान 11. itself, buddy. नहीं ड्रीम 11 बोला है तो वी कैन ड्रीम एनी प्लेयर बेसिकली. Yeah, this would be very hard. It will be This very This is would hard. be another very show next time. this is हाँ. another show. Then again, guys, हम लोग socials पे हैं. You can just search our names on socials and हम बात करते हैं इन सब चीजों की. So, but Yeah. we'll keep all of these comments in mind. हम किसी Let's दिन इसको discuss address this on करेंगे. Twitter. Rasil. Let's take this up on Twitter. Let's take this upon Twitter. हाँ. So आप like हम तीनों के नाम अगर सर्च कर लें तो वहां पे होंगे हम लोग के. Okay, moving on to next comment. Cookie writes, views on border Gavaskar Trophy. Yaar, of people want us to cover it. We will do that. Like TSL Nama है, big TSL Nama के बाद someday we will touch Yeah, on we'll try border to Gavaskar. touch on border Gavaskar. तब तक खत्म हो जाएगी लेकिन चलो कर लेंगे कुछ थोड़ा बहुत. Okay, moving on. नामान गर्ग writes, why वासे and इफी से बाबर as घंटे का क्या है? अब सर ये वासे और इफी से आप आगे पूछे. हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में कि वो क्यों कहते हैं. ऑल्दो कहना नहीं चाहिए. द गाय हैज लाइक अ लॉट ऑफ सर्विस और लाइक 50 एवरेजिंग बैट्समैन है. टेस्ट में अच्छा कर रहा है. कैप्टन है. कहना नहीं चाहिए ऐसा. ये Maybe he there's deserves like it. a subliminal message in there that he rules the hour or every hour or something like that. I think वास It's late. खैर छोड़ो यार. वास इफी भाई क्या क्या Okay. बोलना. All right. Going on to the last comment of the evening, guys. SME edits right by Said Minhal. Okay. Faheem Ashraf played very good game under pressure. Yeah, he did. I mean, I think यार एक मैं बात बोलूं यहाँ पे and I don't know how to explain this, but I think कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना जब जब 18 चाहिए होते हैं आपको या 20 चाहिए होते हैं, I think बैट्समैन से प्रेशर हट जाता है. This is just what I think. But you still have to be calculated, right, on where to go. He was trying different paddles and different gaps वगैरह वो निकालने की तब भी कोशिश कर रहा था. तो calculated hitting थी. It wasn't mindless hitting. ये नहीं कि बस वो D mid wicket मार रहा है. उसने different angles और situation के हिसाब से कोशिश की. But So, I yeah, think 12 से 15 वाली जो एक वो होती है ना रन्स की वो I think ज्यादा मुश्किल होती है compared to 18 से 20 वाला. क्योंकि उसमें तो फिर आपको पता है ना कि यार मैंने बस हर बॉल पे घुमाना है. लगे तो लगे नहीं तो भाई गेम वैसे ही हार गए. So yeah, but still very good innings by Fahim. यार unbelievable. कुछ और कवर करना है? एक चीज जो हमने आज 1 घंटे में निपट गए ना यार. अब आज सोते हैं. हसन भाई you can carry on. बस लास्ट पॉइंट फिर उसके बाद एंड करते हैं. मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट कहना चाहता था कि फहीम अशरफ वाज द मैन ऑफ द मैच. बट अगर आप वो देखें ना जो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर्स की लिस्ट बनती है उसमें शादाब खान was also he did really well with the ball and bat. मतलब हमने उसकी बॉलिंग की बात की when everybody was going for a lot of runs. He bowled 4 overs with 2 for 26
एंड उसने मेडिन भी फिर फर्स्ट है। आके बैटिंग में भी वो 40 ऑड मारा, तो हाँ ओवरऑल विकेट। परफॉर्मेंस में ना वो भी थोड़ा ओवरलुक हो गया, बड़ी अच्छी इनिंग्स उसने भी खेली हाँ है। एंड में विकेट फहीम अशरफ विकेट ने लाइमलाइट ले ली, विकेट। बट शादाब भी हम्म। वर्थ टॉकिंग अबाउट। बढ़िया, And दैट वाज माय it's good, लास्ट। it's good to see Shadab coming back in form, बैट बॉल दोनों के साथ। So अच्छा मजा है। शादाब आपका वाइस कैप्टन भी है बाय द वे, जस्ट पॉइंटिंग दिस आउट। या मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ यार, ये अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि लाइक उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वाइस कैप्टन की भी है। यार मुझे एक चीज बस यहाँ पे थोड़ी सी कहनी है कि हम लोग ना, मैंने कभी जिंदगी में पाकिस्तान क्रिकेट डिस्क्लेमर्स के साथ डिस्कस नहीं की है अपनी लाइफ में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कि ये पहली दफा मेरी जिंदगी में हो रहा है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ एंड आई हैव टू लाइक पुट लाइक 7 डिस्क्लेमर्स कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, विच इज लाइक सो यार फ्रस्ट्रेटिंग। आप कुछ कर ही नहीं सकते ऐसे माहौल में, कुछ नहीं हो बिल्कुल सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज I think someone there is Iman who is doing a show on change of pace. सही है, तो she put up something about Babar's innings ना, she didn't like it 50 रन 40 ओवर पे ना, and she faced some fire ना, तो वो यार आज इट्स के टाइम में। अनफॉर्चुनेट, इट्स यार वैसे मैं एक बात अनफॉर्चुनेट। बोलूं, हाँ यार इट्स वैसे मैं एक अनफॉर्चुनेट, बात इट्स वैसे मैं अनफॉर्चुनेट। एक मैं सही बात है। बोलूं यहाँ पे, जिसका आपने नाम लिया है ना, मैं लाइक उनकी तरफ से भी बहुत आया है इस तरफ। लाइक अभी कुछ दिन पहले ही कि मेरी टीएल पे जाके देख लेना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कंडोन नहीं कर रहा हूँ कोई चीज, बट लाइक अगर आपको इन सब चीजों से हटना है ना, इस पूरी उससे हटना है, तो लाइक यू कांट बी सिलेक्टिव अबाउट इट कि ओ अच्छा इसने ये किया तो लाइक इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा गाइस, कमेंट आ गए। और कौन डाले? अब्दुल मजीद और कमेंट आ गए। अब्दुल मजीद खान राइट्स, ब्रो आफ्टर पावर लीव फॉर वेस्ट इंडीज, पीजेड प्लेइंग 11 बाबर हारिस टाइम, टीकेसी हसीब शाकिब नीशम आमिर अजमत वहाब अरशद कैसा है? सर हम्म। आपने 11 बना के हमसे पूछ रहे हैं, सर हम पीजेड के नहीं हैं लाइक मैनेजर। शाकिब शाकिब किसकी जगह आया? शाकिब उसकी जगह है ना, क्या नाम है? पाहुल की पावल जगह की आया, जगह। तो नीशम कैसे आया? हाँ मुझे भी यही था, नीशम और आमिर जमाल दोनों कैसे खेलेंगे आप? हाँ मतलब कोई कोई और भी बॉलर इन्होंने मिस किया है, नॉट लाइक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा आज कौन और खेला था इनके साथ। मुजीब मुजीब बिठाया है इन्होंने सम रीजन। नहीं, आई रादर नहीं प्ले नहीं मुझे मुजीब ओवर। नहीं यार हाँ, मुजीब 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 शुड मुजीब प्ले, तो हाँ मुजीब शुड प्ले। Yeah, so that was the comment that I think CZ को यार like I don't think उनको ज्यादा टिंकरिंग की जरूरत है even after हाँ हाँ हाँ, तो जो है एंड रॉकमैन गोज। टीकेसी ने आके राशिद को 2 पे 2 छक्के मारे। टीकेसी और हसीबुल्ला उनके बेहतरीन जो है ना, सेट हुआ हुआ है मामला उनका। देर ओके, मतलब उनकी जो है वो ठीक ही टीम सी इज द सेट है। आइडियल नंबर 4 वैसे। हाँ बेहतरीन। they've got their batting right and it's just about the bowling now, तो let's see how they do. All right guys, so yeah, that was our show for today. डबल हेडर था, काफी मजा आया। कराची इज आउट ऑफ इट, टीयर्स राइट, बट वी एंड कोयटा इज हैंगिंग बाय थ्रेड। जिस दिन कोयटा जाएगी ना, मैं भी ये करूंगा ऑन कैमरा बेटा तुम याद। So Quetta is hanging by a thread, but Multan, Lahore, Islamabad, and Peshawar have most likely qualified, and the playoffs are looking as how it is. अब बस race to the top two वाला situation है, so let's see what happens. But yeah, good game. Peshawar won the against Lahore, so they inch closer to that qualifier spot, and Islamabad won an absolute thriller today. Probably Fahim's finest T20 innings until now. So that was our show. Thank you everybody for joining. Thank you to all our audience. Thank you Sohaib bhai. Thank you Hassan bhai for discussing the game with us today. We'll be back tomorrow once again right after the game between Quetta and Peshawar, which is probably an elimination game for Quetta. So we hope that it's a good game and that may the best team win. So until next time, tomorrow inshallah, right after the game, we'll see you then. Until then, take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. That is